So let us come to the breadboard realization of half adder and half subtractor, which we have already discussed in our theory part. The diagram which was there for half subtractor was something like this. We needed an XOR gate and an AND gate with inputs coming like this. So this is AB. Then we will have two outputs, one coming from XOR gate, which will be A XOR B, and the other coming from AND gate, which will be A and B. This is your half adder circuit. Fine. So all what you need to do is you have to short the inputs to these two gates. 7486 we will be using as XOR IC, और अगर XOR की IC यूज करें तो ये ही है 7486. AND की IC है 7408. Okay, तो एक 7408 चाहिए, एक 7486 चाहिए in order to make a half adder. So the same we have over here with us. Let me just show this to you. एक IC, this one is your 7408 and this one is your 7486. And as usual I have my multimeter over here जिसकी ground probe मैंने ground से connect कर ली है. Now we will have to make connections. So let us start. सबसे पहला हमें जो करना है that is to give grounds to both ICs. तो this is our ground and ये हमने 7408 को भी ground कर दिया. Okay, so I have done the grounding and over here also the grounding is done. सबसे पहले ground किया दोनों ICs को, दोनों की 7. उसके बाद we will have to provide VCC to both of these ICs. So in order to provide VCC, what I'll do is I will connect the 14 pin to 5 volts. That's it. So let me just take it and connect it to the 14 pin. So yeah, it worked. Just make a few put tight connections, and then we also have to take for XOR gate, and I have just turned my circuit on. You see that I have to shift this to this side. We can check whether the ICs are on or not by connecting the probe to the required places. So you see over here, let us see. So it seems as if there is some, so we are getting 5 volts over here and here also we are getting 5 volts. So this IC is on. यहाँ देखें, it is whether it is connected or not. Yeah. We have to take care of this. This also is 5 volts. Okay, so the ICs are on now. It seems like my ground is a bit loose, so I have to tighten it anyways. देखें, yeah, we are getting 5 volts. So both ICs are on. Now what we have to do is, as per the circuit, जो भी इनपुट XOR गेट में जाएंगे सेम वही इनपुट AND गेट में भी जाने हैं. तो सबसे पहले I will connect my inputs. So yeah, let's say this is the input to my AND gate. This is input 1, let's say A है ये. If I am saying this is A, then this A has to go to XOR gate as well. तो हमने इस A को कर दिया short. या अगर मैंने यहां से कहा कि this one is A, तो एक वायर लेकर सेम वोल्टेज यहां भी ड्रॉप कराना होगा on XOR. So it is now shorted. Fine, it is now shorted. इसी तरीके से I will have to take another input B. Fine, और B को भी मुझे XOR के किसी गेट के साथ शॉर्ट कराना होगा. तो it means somewhat visible wire. ये लिया हमने यहाँ और इसे
हमने बी पर जो है वो इनपुट दे दिया। अब ये दो वायर्स हैं हमारे इनपुट्स हैं, और जो अब मैं लगाने जा रहा हूँ दोज विल बी आर टू डिफरेंट आउटपुट्स, हमें दो अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। लेट्स सी, एक आउटपुट मिलेगा एंड गेट से और एक आउटपुट मिलेगा हमें एक्सॉर गेट से, फॉर गिविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ सर्किट, हमने सर्किट बना लिया है। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, बस इनपुट के कॉम्बिनेशंस देने हैं। तो लेट अस फर्स्ट गिव 0 0 0 दिया और एक और 0 दिया। ठीक है, I have given both zeros as inputs. Let us check the output. तो आप नोट करते जाइए, I am giving 0 and 0 as input. जब 0 0 इनपुट दे रहा हूं तब आप देखिएगा आउटपुट क्या आता है। एंड गेट का आउटपुट है 0.1, तो we'll consider at 0, और XOR का आउटपुट है 0.00, तो इसको भी हम 0 ही कंसीडर करेंगे। तो लिखिए 0 0 इनपुट देने पर आउटपुट आ रहा है 0, यहाँ भी और यहाँ भी। It should not be loose anyways. Seems it is fine. Now we will flip the connections. तो इनपुट 0 0 दिया तो आपने आउटपुट नोट कर लिया। अब हम इनपुट 0 1 देते हैं। So my A is 0, यहाँ देखें A is 0, but my B is now equals to, what is happening? Yeah. So if I need to give 1, I should short it on the other side also. तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा 5 वोल्ट, तभी तो हम दे पाएंगे। तो ये वायर शॉर्ट किया है बिकॉज आई वांट टू ड्रॉ 5 वोल्ट्स ऑन द अदर लाइन ओवर देयर। अब आप देखें, इफ आई एम गिविंग इट एज इनपुट, तो देखिए मैंने B दिया है 5.12, A आप देखें A is 0.00, B is 5.12। अब सम और कैरी का आउटपुट लिखिए। तो दिस इज द टेबल विच आई एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ। आपने A दिया है, B दिया है, आप लिख रहे हैं सम और कैरी। सम जो है वो आ रहा है एक्सॉर से, कैरी आएगी आपकी एंड गेट से। ठीक है, तो व्हेन वी गिव 0 0 वी वर गेटिंग 0 एंड 0। अभी हमने दिया है 0 1, तो देखते हैं एक्सॉर का आउटपुट क्या है और फिर देखेंगे एंड का आउटपुट क्या है। तो इनपुट हमने ऑलरेडी दे रखा है, हम देखते हैं एक्सॉर का आउटपुट है 5.13 और एंड का आउटपुट है देखें 0.13। तो यहाँ लिख लीजिए आप that when I was giving A as 0, B as 5.12, so I was getting my sum या XOR का output as 5.13, but this was 0.13 only. ठीक है, अब क्या करना है, अब इनपुट्स फ्लिप करने हैं, A को बढ़ाना है और B को 0 पे लाना है। So let us do that. ये रहा, हमने A को 0 किया हुआ था, अब A को 5 कर दिया और B को 0 पर ले गए। तो आप इन नोट कीजिए, अब A जो है हमारा दैट इज 5.12, B है 0.00, आंसर देखें सम 5.12 आ रहा है और कैरी 0.13 आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लिख लीजिए, आई वॉज गिविंग 5.12 एंड 0 एज इनपुट, मुझे मिला 5.13 एंड 0.13 एज आउटपुट। तो लॉजिकल आप लगा सकते हैं कि 0 0 पे 0 0 आ रहा है, 0 1 पे 0 1 आ रहा है, 1 0 पे भी 0 1 आ रहा है, और लास्ट में दोनों पे 5 वोल्ट देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो लेट अस डू दैट। मैंने किया दोनों को 5 वोल्ट पे। नाउ ऑन डूइंग दैट, फर्स्ट वी हैव टू चेक द इनपुट्स। इट इज 5.12 on A and 5.12 or let's say 13 on B. So 5.12 on A I am giving, you can write it down, 5.12 and 5.13 on B I am giving. Now let us check the output. XOR से जो आउटपुट आ रहा है
दैट इज 0.00, तो मैंने लिख लिया जो सम है दैट इज 0.00 और जो कैरी से आउटपुट आ रहा है दैट इज 5.12, तो मैंने वही लिख लिया 5.12 आई एम गेटिंग ऑन कैरी। सो ये आपकी टोटल टेबल बन गई एंड हेंस द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाफ एडर जिसमें कि हम केवल 2 बिट्स ऐड करते हैं हमने वेरीफाई कर लिया। एक्सऑर से याद रखिएगा एक्सऑर से सम मिलता है और एंड गेट से कैरी। फाइन, तो ये हुई आपका ब्रैडबोर्ड पे हम कैसे वेरीफाई करेंगे एक हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर। अब इसी क्रम में हमें देखना है कि हम हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे बनाएंगे। पॉइंट इज वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज कि हमें एक आईसी और बढ़ानी पड़ेगी जो कि होगी नॉट की आईसी। तो नॉट की आईसी का नंबर क्या होता है, यू नो दैट। फॉर नॉट वी यूज 7404। सी इफ आई हैव वन और नॉट। या so this is the IC of NOT gate. Anyways, I will have to put it. So first of all, I will remove all my inputs. Okay. The only thing I want to change is to add another IC. So for that, I think I should shift all the ICs up because then I will require a few things to be done. Since XOR will give me the subtract this time and I want not of something, हमें a बार चाहिए था, remember the expression a XOR b and a bar b, and this is 7408 and gate. Fine, so please give quite attention when you are connecting the ICs. So let me just connect all these to ground first. ये ground कर दिया, this is grounded now. Let me use another wire. This IC is also grounded. Let me use another short wire to ground that. और ये भी हमने ग्राउंड कर दिया। तो एज ऑफ नाउ हमने तीनों जो ICs हैं वो अभी केवल ग्राउंड की है। अब 5 वोल्ट की सप्लाई दे दीजिए, तो that's pretty straightforward, यहीं से दे दीजिए। So ये 5 volts to this one, 5 volts to the other one also, which is NOT gate IC, and 5 volts to AND also. Okay. अब देखिए, आप इससे पहले कि ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, हमने केवल अभी 3 IC ली है, XOR, NOT और AND। इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, कहाँ यूज करेंगे, पहले उसे समझते हैं। हालांकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने पुरानी वीडियोस या इससे पहले वाली वीडियोस देख रखी हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लेट अस डू दैट। द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ सबट्रैक्टर वाज समथिंग लाइक दिस। You have A, you had B। जो सब्ट्रैक्ट का आंसर था वो अभी भी A XOR B था, ठीक है। तो यहाँ A है, ये B है, सब्ट्रैक्ट का आंसर अभी भी यही है। So this is our subtract। जो बोरो है, जिसको हम बोरो बोल रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा, उसका ये हो गया है अब अंजाम A बार डॉट B, ठीक है, A बार डॉट B। और जो टेबल आपको बताई थी वो थी A B देंगे और हमारे पास होगा बोरो और सब्ट्रैक्ट चेक करने के लिए। तो जब हम देंगे 0 0 तो 0 माइनस 0 क्योंकि 0 होता है तो आंसर आना चाहिए दोनों 0। जब हम देंगे 0 1 तो ये -1 होता है, -1 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लिखेंगे 1 0, ये 1 हो गया क्योंकि 1 माइनस 0 इज 1 और 1 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम देंगे 1 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लॉजिक टेबल हमें वेरीफाई करना है। कनेक्शंस पर ध्यान दीजिए। Now instead of getting directly feeding in A, we have to first give it to some NOT gate, और NOT gate से जो A बार आएगा उससे फीड करना होगा AND gate, ठीक है। तो वही सर्किट हम यहाँ पे बनाएंगे अब। तो सबसे पहले A और B इनपुट्स देखते हैं। Where are those wires? We have
let's say this is my input A, fine, and this one is my input B. अब B तो XOR में डायरेक्टली जा रहा है, ये देखिए B XOR और AND में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो B तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ यूजिंग वायर, थोड़ा सा. So B I have taken and I have connected B directly to my XOR's input and AND. ये तो B हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस ब्लू येलो कलर. अब A नहीं चाहिए डायरेक्टली, जो मुझे AND में फीड कराना है वो दरअसल A बार होना चाहिए. फॉर दैट आई विल टेक A, आई विल टेक A, इसका नॉट लूंगा थ्रू यूजिंग या बाय यूजिंग माय आईसी ऑफ इन्वर्टर 7404, और इसके आंसर को यानी अब जो A बार आया यहां से उसे फीड कर दूंगा मैं इनपुट ऑफ AND में. दैट है. सो दिस इज A, यहां से A बार आया और इसको इनपुट में AND गेट के मैंने फीड कर दिया. Okay. As always, I say that your connection should really be tight. यहाँ XOR की IC ये है, तो इसका आउटपुट हमें तीसरी पिन पर मिल रहा है, ये रहा. और ये जो IC है AND की, यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है बोरो वाला, ये भी तीसरी पिन पर ही होगा. So what I'm doing is I'm using wire cutter to just align and mend my wires. Okay, fine. Let us see whether the ICs are on or not. The ICs are 5 volts. पहली वाली पर देखें. दूसरी IC which is of NOT gate is 5 volt. तीसरी IC which is of NOT gate is also 5 volt. तो तीनों ICs तो कम से कम ऑन है. अब हम अलग अलग इनपुट्स देंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है. ठीक है. So let me give 0 0 first. So both of the inputs are ground. Both of the inputs are connected to ground. Let us see inputs कहाँ क्या आ रहे हैं. So note this down. This is 0.00 as A, 0.00 as B. तो A B 0 0 है, आप लिख लीजिए. ये 0.00 A है और B भी 0.00 ही है. ठीक है. अब देखते हैं सबसे पहले सब्ट्रैक्ट क्या है. तो सब्ट्रैक्ट का आंसर XOR गेट से मिलेगा और XOR गेट ये रहा. तो 0 0 पे हमें देखा व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग 0 0. तो फिल कर लीजिए सब्ट्रैक्ट में, जो आपने टेबल बनाई है उसमें सब्ट्रैक्ट में फिल कर लीजिए 0.00. और बोरो का आंसर हमें यहां से मिलेगा, दैट इज सी. बोरो में फिल कर लीजिए 0.15. ठीक है. सो व्हाट ऑल आई एम सेइंग इज दिस. हमने देखा ये तो जो टेबल थी ये लॉजिक टेबल थी. अब जो हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखी वो ये हमारे पास A है, ये B है, ये बोरो है, ये सब्ट्रैक्ट है. तो आंसर क्या आ रहा है. मैंने दिया 0.00, 0.00. We are getting 0.15 in borrow and 0.00 in subtract. फाइन. इतना किया है. अब इनपुट चेंज करते हैं. पहले इनपुट करते हैं A को मैं 0 ही रखता हूँ, B को 1 कर देते हैं. A is 0 but I am converting B as B to be 1. So let us check what is the input. 0.00 on A and 5.12 on B. तो ये लिख लेते हैं. When I am giving 0.00 on A and 5.12 on B, borrow और sum क्या होंगे. तो let us check. borrow हमें कहाँ से मिलता है, AND से, और sum कहाँ से मिलता है या subtract कहाँ से मिलता है. subtract मिलता है XOR से. XOR गेट ये रहा जहाँ डायरेक्ट इनपुट्स आ रहे हैं. तो I am getting 5.12 on XOR and I am getting this is not going to be
Let us check what I'm getting as an output on 1. So this is 0.15 again on my AND gate. Should not have been the case. So what I've done is I have connected 5 to B. So it should be 0 minus 1, which should be minus 1. तो borrow और sum हमारे पास दोनों 0 आने चाहिए थे. तो borrow जो subtract है वो 0 आने चाहिए थे. Subtract I'm getting as 0, but borrow I'm not getting as 0. It means there is some flaw. अब देखते हैं कि ये कंडीशंस आपके साथ जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तब भी आएंगी. अब हमें ये देखना है कि क्या गलती है. मुझे जहां तक लगता है या आपका सबसे पहला सस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि ये जो आईसीज हैं वो सही से फंक्शन कर रही हैं या नहीं. What I have seen by doing the inspection is, although I am giving 0 as input to my NOT gate, ये देखिए NOT gate को मैं 0 दे रहा हूँ as input, but this is the input on NOT gate, but the output is also 0. It means my NOT gate is not functioning properly. So the only thing which I can do is I have to change the IC. Although I can use a different gate of the same IC, but better would be to just simply change the IC. And for that I have another IC with me. When you will do these experiments in lab, almost 2 to 3 times you will have to change your ICs, because that's how students do things. Okay, ICs placed properly. Let me check. This is ground, this is 5 volts, this is 0, and this is 1. This should not be 1. Let me just check again whether the ground has been connected properly or not. Okay, this is ground and the IC is grounded again. Perfect. Let me just check. I'm giving 0 as input. It is increasing actually. I'm getting 5 almost as output. So now I could do that. The problem was probably with not grounding it properly. So अब हमें मिल रहा है यहाँ 5 वोल्ट आउटपुट में. अब फाइनली देखते हैं कि बोरो क्या हो गया. अब बोरो भी 5 हो गया. तो सब्ट्रैक्ट 5.11 और बोरो भी 5.11. तो ये चीजें आपके साथ भी होंगी. आपका आंसर नहीं आएगा, देन यू विल हैव टू वेरीफाई कि कौन सी आईसी खराब हो रही है. सो दिस इज 5.11 एंड 5.11. नाउ आई विल हैव टू डू व्हाट. अब कंडीशन चेंज करनी होगी. अब ए को मैं 1 कर देता हूं और बी को 0. सो बी इज 0 नाउ. बी इज 0. ए को हमने कर दिया 1. फाइन. So let us check again. What is the pin configuration? A is, you can see, 5.12. B is 0.00. तो ये लिख लेते हैं. My A is 5.12. B is 0.00. Borrow check करते हैं. Borrow कहाँ से check करेंगे? Borrow will be, यहाँ देखिए इस सर्किट में AND गेट का आउटपुट इज borrow. तो AND गेट ये रहा हमारा. इसका आउटपुट चेक करते हैं. What is it? So this shows 0.15. Okay, so borrow is 0.15. Let us write it. And I'm giving such an input. My borrow is 0.15. अब subtract देखते हैं क्या है. Let us check. Subtract is from XOR gate. So it is 5.11. So subtract की value है 5.1. ये लिख लिया हमने 5.11. अब लास्ट इनपुट बचा है कि दोनों को 1 देंगे तो क्या होगा. तो लेट अस डू दैट. Now what I have done is I have connected both of these to 1 1. दोनों को 1 दे दिया. Let us say A को हमने दिया है 5.11 और B को दिया है हमने 5.11. तो ये लिख लीजिए A और B दोनों को 5.11 दिया है.
5.11 5.11। अब बोरो और सब्ट्रैक्ट चेक करना है कहाँ होगा, क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो ये रहा आपका बोरो विच इज जस्ट इंसर्टेड प्रॉपर्ली। ये सबसे पहले हमने देखा इट इज, सो व्हाट आई डिड इज आई कनेक्टेड टू which think I there is loose connection. Okay, so let us check again. I have given 5 and 5 as input, and this is fine. I'm giving 1 and getting 0. This I see I'm giving 0 and 0. This should be 1 and 0. So there is some connections going bad. This is 0, this is 0, or this is 1, and the output is 0. Yeah, now it is fine. तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो the pins were out. I don't know whether I'm able to see show it to you or not. यहाँ कुछ metals एक दूसरे को touch कर रही थी, तो it was giving us bad values. तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा when you are making circuit. Okay, the metal should not touch each other. So अब आप finally note करें when I've given 5.11 and 5.11 as input, my borrow is 0.88, ये लिख लीजिए, and my subtract is 0.00. तो ये हमने लिख लिया. It is borrow is 0.88 and subtract is 0.00, and this verifies your constructed half subtractor, जिसमें कि आपने दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट किया है. That's it. And क्योंकि हमने दो एक्सपेरिमेंट एक साथ कर लिए हैं, तो यू विल बी गिवन 2 week टाइम टू कंप्लीट दिस. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज यू फर्स्ट कंप्लीट योर फाइल्स. तो अगले हफ्ते केवल फाइल करेक्ट होंगी, एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू योर वाइवा. और वाइवा दोनों ही चीज़ों का, हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर का एक साथ हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.